ڈھانچہ بنا کر جس طریقے سے مختلف وفاقی اداروں سے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو صرف ایک نوٹس پر گھر بھیجا جا رہا ہے، اس پر ہمیں افسوس ہے اور شدید تشویش ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، ایک جو کیس 2012 میں سپریم کورٹ گیا جو کہ آخر 2019 تک سنا گیا، فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ 2021 اور ایک ہفتہ قبل میرا خیال ہے یا 4-5 روز قبل اس کا تفصیلی فیصلہ آیا۔ یہ پیریڈ بہت ضروری ہے اور اسی لیے میں نے یہ پیریڈ بیان کیا کہ جب ایک چیز 2012 میں شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، 2019 تک بھی اگر کوئی کسی فیصلے پر آپ آ چکے ہیں تو وہ سنا دیا جائے، لیکن اس پر بھی لوگوں کی امید جو ہے وہ کھینچی گئی اور 2021 میں لوگوں کو یہ ایک نوٹس، یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا نوٹس میرے پاس ہے سوئی سدرن گیس کا، اس قسم کا نوٹس دے دیا گیا اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ گھر چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1996 میں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنائے گئے۔ میں اب مزید یہ تبصرہ نہیں کروں گی کہ سیاست کو کس طریقے سے لوگوں نے 90 کی دہائی میں استعمال کیا، افسوسناک عمل ہے، لیکن یہ پولیٹیکلی وکٹمائز لوگ ہیں، ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ سے گھر بھیج دیا گیا 1996 آنورڈز اور جنرل مشرف کے پورے دور میں۔ 2010 میں ایک قانون کے ذریعے قانون سازی کر کے ان لوگوں کو ری انسٹیٹ کیا گیا، ان کے چولہے جلائے گئے، ان کو روزگار دوبارہ ملا۔ اب ایک مثال جو بڑی سادی ہے کہ اگر کسی شخص کو 28 سال کی عمر میں نوکری ملتی ہے، اس کو آپ چند سال بعد یا 1 سال بعد نوکری سے نکال دیتے ہیں، پھر 10 سال یا 11 سال کے بعد ایک قانون کے ذریعے اس کو بحال کرتے ہیں، تو جو 28 کا ہوگا چلے وہ 38 کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد 11 سال بعد تقریباً 50 کی عمر پہ وہ جب بندہ پہنچتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹاٹا گھر چلے جاؤ، اب تمہارا قصہ ختم۔ اس طرح کی انسرٹنٹی، اس طرح کی تکلیف جو پاکستان کے کئی گھروں میں آج سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے نتیجے میں آئی ہے، اس پر ہمیں شدید افسوس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کیجئے، آپ ان چولہوں کو خدارہ دیکھیے، ان گھرانوں پر خدارہ رحم کیجئے۔ یہ 11 ڈپارٹمنٹس ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اس میں انٹیلیجنس بیورو ہے، کمشنر افغان ریفیوجیز، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، PTCL، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن اسلام آباد، اسٹیٹ لائف انشورنس، سول ایویشن اتھارٹی، واپڈا، سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹریڈنگ کارپوریشن۔ یہ 11 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ شاید یہ حکومت انتظار کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ سنایا جائے اور ہم دھڑا دھڑ لوگوں کو فارغ کریں، کیونکہ یہ حکومت جھوٹی حکومت ہے، یہ حکومت بے حس حکومت ہے، یہ حکومت نالائق حکومت ہے، اور اس حکومت نے اس آرڈر سے پہلے ہی سوئی سدرن گیس سے 8 لوگوں کو فارغ کیا ہے، وہ پہلے ہی انہوں نے کیا ہے۔ وہ MD سوئی سدرن گیس کہیں گھومنے چلے گئے، واپس آئے تو کہتے ہیں کہ جی سوئی سدرن گیس کمپنی پر بہت بوجھ ہے 8 لوگوں کا، اور وہ 8 لوگ پھر یہ کہتے ہیں آپ سندھ کی بات نہ کریں، آپ تعصبی ہیں۔ وہ 8 لوگ سندھ کے تھے جس میں سے 2 کا تعلق اقلیت سے تھا، تو یہ تو اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہو سکتی کہ سارا بوجھ سندھ کے لوگوں نے ڈالا ہوا تھا آپ کے نازک کندھوں پر، اور وہ لوگ
उन लोगों ने भी अपील की है, क्योंकि उनको 10 जून को अचानक टर्मिनेशन ऑर्डर मिलता है कि भाई घर जाओ, और उसमें से एक डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैदराबाद, एक चीफ इंजीनियर जोनल मैनेजर घोटकी, जोनल इंजीनियर जैकबाबाद, एक सदर कराची से उनका ताल्लुक़ है, एक सीनियर इंजीनियर हैं ठुल के, एक चीफ इंजीनियर सखर, और एक और इंजीनियर जैकबाबाद, और एक इसमें है डेरा अलायार, और एक ये कोयटा। खैर बलूचिस्तान भी बचा नहीं इनके तासुब की नज़र से। सो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हुकूमत पहले ही लोगों को स्टील मिल हो, रेडियो पाकिस्तान हो, फारिग करती आई है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सिर्फ इनके काम को तक़वियत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस हुकूमत को जवाब दिया है कि और इस तरह लोगों को निकालें ये। तो इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज 2012 का केस का फैसला 2021 में लोगों को नौकरियों से निकालने के हवाले से दे दिया है, तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप तो वो ना करें जो ये नालायक हुकूमत कर रही है, जो ये बेहिस हुकूमत कर रही है, जो गैर इंसानी इक़दामात ये बेहिस हुकूमत उठा रही है। खुदारा सुप्रीम कोर्ट तो ये ना करे। और जिन ऑनरेबल जज ने ये दिया है, दूसरे दिन वो रिटायर हो रहे थे। तो हमें ज़्यादा अफसोस इस बात पर है कि आप घर जाते जाते इतना तकलीफ दे फैसला पाकिस्तानी कौम को सुनाकर गए हैं। ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके हुकूमत में आने वाली नालायक हुकूमत है, जिसने आज तक नौकरियां नहीं दी हैं, लोगों के चूल्हे जलाए हैं। फिर वो चाहे टर्मिनेशन ऑर्डर देके जलाए हों, महंगाई करके जलाए हों, बुझाए हों, पेट्रोल की कीमतें ऊंची कर कर इन्फ्लेशन बढ़ाकर बुझाए हों, हर हरबा हर तरीका इस नालायक हुकूमत ने इख्तियार किया है लोगों के चूल्हे बुझाने का। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिस पर ये खुशी का इजहार कर रहे होंगे। हमें खुशी नहीं है इस ऑर्डर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गहरा दुख है, गहरी तकलीफ़ है और बहुत तशवीश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा अपनी तशवीश का इजहार मीडिया में भी किया है। हमारे सीनियर्स भी बात कर चुके हैं। और अब चूँकि कल स्वीट सदर्न गैस से 2600 लोगों को टर्मिनेट करने का फ़ैसला सुनाया गया है, इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट से भी ये काम शुरू हो गया है। बिल्कुल 2600 लोगों को विद द स्ट्रोक ऑफ पेन एक नोटिस। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो भाई आप अपील करें सुप्रीम कोर्ट के आगे। जब इमरान खान और दीगर इन्फ्लुएंशियल लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 के ऊपर एक प्रॉपर्टी के ऊपर जा सकते हैं अपील में, और सुप्रीम कोर्ट उन पर रहम भी खा सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं कि जो हमने ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर एक अदालत का था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। वो फ्लैट्स थे बड़े लोगों के, बड़े लोगों के, उसमें इमरान खान भी था और कुछ जनरल्स भी थे और भी बड़े लोग थे। तो जब उनको रिलीफ मिल सकती है इतने बड़े लोगों को, तो इन गरीबों को रिलीफ नहीं मिल सकती, इन मजदूरों को रिलीफ नहीं मिल सकती, इन मेहनत कशों को रिलीफ नहीं मिल सकती। क्या वजह है कि धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के फैसले कर रहा है जिससे कि इंसानियत शर्मिंदा हो रही है, इंसानियत शर्मिंदा हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो मैं एक बार फिर, क्योंकि आप साथी भी ज़ाहिर बात है मिलेंगे इन लोगों से, अब ये निकलेंगे सड़कों पे तो आप भी मिलेंगे इन लोगों से। हमें इनके साथ खड़े होना है। इनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। ये पाकिस्तानी शहरी हैं जिनको एक झटके में बेरोज़गार किया जा रहा है। हमें बहुत दुख है। तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि खुदारा ये जुल्म ना करे। जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 पे एक अमीर तबके को रिलीफ दी,
आप इस गरीब तबके को, इस मेहनत कश तबके को रिलीफ देंगे, हमें आपसे ये उम्मीद है। इस पर नज़रसानी की जाए। मैं एक और 2 इश्यूज़ हैं, उस पर फिर मैं आती हूँ। दूसरा इशू है पानी की शॉर्टेज। सिंध के अंदर पानी की बहुत शॉर्टेज है, जिसकी बुनियादी वजह जो लिंक कनाल्स हैं उनको शॉर्टेज में चलाना है। ये लिंक कनाल्स जब तक शॉर्टेज में चलेंगी, तकलीफ़ में लोग रहेंगे। यहाँ पर भी हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सिंध में लोग तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ में लोग पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में होंगे तो हमें दुख होगा। लेकिन इस पानी के एलोकेशन और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में एक उसूल सेट था कि तकलीफ़ होगी तो सब बांटेंगे। ये नहीं होगा कि मैं तकलीफ़ में, आप तकलीफ़ में, तो आप मुझे ज़्यादा तकलीफ़ देंगे और अपने ऊपर कम तकलीफ़ लेंगे। ये हो रहा है आज पाकिस्तान के अंदर। सिंध को सबसे ज़्यादा पानी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। मई, जून, जुलाई में जो जुल्म ज़्यादती सिंध के, इसका आज तक अजाला नहीं हुआ। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि आप खुदारा ये लिंक कनाल्स बंद करें। ये तो जहन में कोई मंतक ही नहीं है कि जिन कनाल्स को आपने सीज़न पे रखा था उसको आप बिना सीज़न के चला रहे हैं। यहाँ का किसान जो है वो भूखे पेट सो रहा है, यहाँ का हारी तड़प रहा है। कैसे कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता है? पाकिस्तान के किसी हिस्से में कोई बंदा, मैं नहीं मानती कि कोई इंसान दूसरे की तकलीफ़ देख के खुश हो रहा है। ये चंद लोग हैं जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी कभी मज़हब के नाम पे लोगों को लड़वाया, कभी रंग के नाम पे लोगों को लड़वाया, कभी नस्ल के नाम पे, कभी ज़बान के नाम पे, और आज ये पानी के ऊपर लोगों को आपस में लड़वाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की ज़हनियत पर, ऐसे लोगों की सोच पर मैं लानत भेजती हूँ। और यकीनन अगर आज हम नहीं सुधरे तो ये तशवीश बढ़ेगी, ये इंतशार बढ़ेगा। लिहाजा जो ये काम कर रहा है वो रोके इस काम को, लिंक कनाल्स को बंद करें। सूबों को चाहे शॉर्टेज हो चाहे सरप्लस हो, इक्वल बुनियादों पर 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत पानी मिलना चाहिए। और जो 3 महीने आपने हमें तड़पाया, हमें रुलाया, हमें ख्वार किया, उसका अजाला होना चाहिए। इसके साथ मेन पॉइंट एक है जो आपसे भी मुंसलिक है, मुझसे भी मुंसलिक है, वो है पाकिस्तान मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी। मेरे नज़दीक ये डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, डिज़ास्टर अथॉरिटी है। तो ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये एक और सेंसरशिप का ज़रिया है। पहले ही हमारी ज़बानों पर कतगन लगाई जा रही है, पहले ही आज़ादाना राय, आज़ादाना सोच पर कतगन लगाई जा रही है। आज एक ट्वीट करता है सहाफ़ी अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, तो कल उसे पता नहीं होता कि वो अपने घर बैठ के रोटी खाएगा या कहीं और कुछ और खाएगा। ये हालत है आज पाकिस्तान के अंदर। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए, लेकिन ये केसेस हमारे सामने हैं। खुल के बात नहीं कर सकते। मैं आप लोगों की सारी सिचुएशन समझती हूँ। मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ कि, और मैं कहूँगी भी नहीं, मैं जानती हूँ हर इंसान जो यहाँ भी इस कमरे में मौजूद है, चाहे वो कैमरा पे हो, चाहे वो माइक के ऊपर हो, चाहे वो कागज़ कलम लेके बैठा हो, हर एक के घर में उसके बच्चे उसका इंतज़ार करते हैं शाम को। उसका प्रोफेशन आज सहाफ़ी का ये हो गया है कि उसको पता नहीं होता कि जो उसने बात की वो किसको बुरी लगी इस हुकूमत के अंदर। ये पीटीआई कल्चर है। पीटीआई हुकूमत ने सहाफ़ियों को गैर महफूज कर दिया है। दहशतगर्दी का तो मुकाबला ये बहादुर साफ़ी कर ही रहे थे, और हमारे कई साथियों ने दहशतगर्दी का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। यहाँ पर एक बॉम्ब के बाद दूसरा बॉम्ब, तीसरा बॉम्ब फटता था और सहाफ़ी फिर भी आगे जाता था। उसके अपनी जान की फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था ये उसकी जान है सिर्फ। लेकिन आज उसे उन जानों की भी फ़िक्र है जो उसकी जान से जुड़ी हुई हैं। उसे आज इसलिए सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो अपनी राय रखता है, अपनी बात करता है, अपना वीलॉग बनाता है, अपने ट्विटर अकाउंट चलाता है।
ان ساری چیزوں پر پابندی لگانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک میڈیا ڈیزاسٹر اتھارٹی بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جسے آرڈیننس کے ذریعے تو مسلط کر دیا گیا ہے۔ جو وفاقی وزیر ہیں بڑے افسوس کے ساتھ پے در پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس طرح ہٹلر کا ایک پروپیگنڈا منسٹری ہوتی تھی، وہ انفارمیشن منسٹری نہیں تھی، اور یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، انفارمیشن منسٹری کو پروپیگنڈا منسٹری بنا دیا گیا ہے۔ تو نام بھی آپ رکھ دیں پروپیگنڈا منسٹری، اس کا نام بھی اب انفارمیشن سے ہٹا دیں، کیونکہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہو رہے ہیں یہاں پر، اور یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے۔ سائلنس کرنے کا لوگوں کو، خاموش کرنے کا لوگوں کو، یہ ایک نئی سینسرشپ لگائی جا رہی ہے، جس کے کہ نہ الیکٹرانک بچے گا، نہ پرنٹ بچے گا، نہ سوشل میڈیا بچے گا، کوئی میڈیا نہیں بچے گا اس سے۔ اور دوسری جانب دنیا میں ایک سافٹ امیج دینے کے لیے اور اپنے جو سائن کردہ لوگوں کے ساتھ وہ ہیں ایم او یوز ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے میڈیا پروٹیکشن کا بھی ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو بھائی تمہاری پروٹیکشن ہے، اور دوسری جانب تمام جو طریقہ کار ہے آپ لوگوں کے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور آپ کو بدترین قسم کی سینسرشپ کی تیاری یہ کر چکے ہیں۔ اچھا، تیاری کرنے کے بعد جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ جی سارے پریس کلبز نے اس کو انڈورس کر دیا۔ کراچی پریس کلب نے برملا ان کو کہا جی ہم نے اسے کوئی انڈورس نہیں کیا، آپ نے ہمارے نام پہ جھوٹ بولا۔ تو میں ان کو جھوٹا بولنے پر حق بد جانب ہوں۔ پی ٹی آئی حکومت جھوٹی حکومت ہے، پی ٹی آئی کے منسٹرز جھوٹے منسٹرز ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے سے پہلے ان کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں جھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ جھوٹوں کا ٹولہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کل جو ڈرامہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جی منسٹر صاحب پی ایف یو جے کے وفد سے مل لیے اور انہوں نے اس ڈسٹرکشن اتھارٹی کے آرڈیننس کو اپروو کر دیا۔ بعد میں پی ایف یو جے کہتی ہے کہ جی یہ تو ہمارا ڈیلیگیشن ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ تو یہ ناٹک بھی انہوں نے کیا ہے، ٹوپی ڈرامہ، مطلب جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ وہ کر جاتے ہیں، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان فراڈیوں سے پاکستان کی عوام کو چھٹکارا چاہیے۔ کل ایک اور جھوٹ پی ایف یو جے نے ان کا فاش کیا ہے، اور یہ جو آرڈیننس ہے اسے ہم رد کرتے ہیں۔ اگر اس پر یہ قانون سازی کرنے جائیں گے، اسے لا بنانے یا اسمبلی لائیں گے، ہم نے پہلے بھی مخالفت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس کی مخالفت کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہر جرنلسٹ بھائی بہن کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کی آزادی پر پابندی ہم پر پابندی ہے، آپ کے بولنے پر پابندی ہم پر پابندی ہے۔ ہم ان تمام پابندیوں اور سینسرشپ کے خلاف ہیں اور ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ 3 اہم پوائنٹس ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو حالیہ فیصلے ہیں جس میں یہ بے روزگار کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ خود انصاف کا ادارہ انصاف کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ابھی سپریم کورٹ میں جو سینئرٹی کو بالاخات رکھ کر جو ہے نا وہ اپائنٹمنٹ کیا جا رہا ہے ججز کو، تو لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک مخصوص ڈائریکشن پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایشوز ہیں جن پر اپوزیشن پیپلز پارٹی تحریک چلا رہی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کو ایک مخصوص ڈائریکشن پر لے جانے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کرے گی، کچھ تحریک چلائے گی؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اس پر جو قانونی چارہ گوئی ہے اس پر بھی کرے گی کام، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے اگر اس طرح کے آرڈرز آئیں گے، دیکھیں اگر آپ مجھ سے بنیادی، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں اور میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس جماعت نے اداروں کی انڈیپینڈنس اور استحکام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی اور آپ کے ساتھ مل کے کی ہے، اور یہی سپریم کورٹ تھا جس کی خود مختاری کے لیے ہم لڑے ہیں، سڑکوں پہ لڑے ہیں باقاعدہ۔ تو اگر سپریم کورٹ سے ہی لوگوں کی امید ٹوٹ جائے اور سپریم کورٹ ہی اس طرح کی نا انصافی کرے لوگوں کے ساتھ،
तो फिर ये कौम, ये अवाम कहाँ जाएगी? और जो आपने सीनियरिटी की बात की, उस पर भी हमें तशवीश है, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इदारा है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, उसका मुकाम ही दूसरा है। हमें अफसोस होता है अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह की बात आए, हमें दुख होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंसाफ की उम्मीद है लोगों के लिए। इंसाफ की उम्मीद से अगर ना इंसाफ़ी की बू आने लगे, तो फिर पाकिस्तान में जो तकलीफ़ है वो बढ़ेगी, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, ये कौम कहाँ जाएगी? मैडम, पीडीएम जलसा करने जा रही है सिंध में, पीपल्स पार्टी क्या उसमें किरदार अदा करेगी? सिंध में होस्ट है पीपल्स पार्टी, तो क्या जाएंगे आप लोग या उसको ताउन? देखिए, पीडीएम तो बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मशवरे पे। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी। अब मुझे नहीं पता ये पीडीएम है या ये कोई और चीज़ है, क्योंकि जब पीडीएम थी तो उसमें जिस तरीके का रवैया बिलखसूस दो जमातों का था दीगर जमातों के साथ, वो काबिल एतराज़ था। और उसके बाद फिर दो जमातों ने ये फ़ैसला किया कि जी हम इस तरह के रवैये को नहीं झेल सकते, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं, किसी की ज़ेली जमात नहीं है। अब कोई भी जलसा कर सकता है, मेरे नज़दीक तो अब वो पीडीएम है नहीं, लेकिन जलसा तो कोई भी जमात कर सकती है। अगर मिल के 2-3 जमातें जलसा कर लेंगी, तो पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत होगी, वहां पीपल्स पार्टी कभी किसी को उसके हक से महरूम नहीं करेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी आज अद्विया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 8 दवाओं में जो इजाफा किया गया है उसको हम मुस्तरद करते हैं। ये जो चोरी इन्होंने शुरू की है, इसमें इन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी की है, क्योंकि एक तो जैसे इमरान खान कहता है ना कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोरी करता है, तो इमरान खान तो चोर है, क्योंकि वो धड़ाधड़ चोरी कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रहा है। और अफसोस ये है कि गैर इंसानी जो रवैया है दवाओं के हवाले से, पहले ये दवाएं जो हैं छुपा ली जाती हैं, और उसके बाद बजाय इसके कि इन दवाओं को छुपाने पर किसी की सरजनिश की जाए, किसी को कोई सज़ा दी जाए, इन्हीं दवाओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। और इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं जो लोगों की जान बचाती हैं, और इसके अलावा अभी 36 और हैं ऐसी दवाएं जिनकी कीमतों को बढ़ाने जा रहे हैं। और पहले भी एक मिनिस्टर को फारिग किया था इसी स्कैंडल के ऊपर, लेकिन उसके बाद कोई खातिर खा हमें ये नहीं पता चला कि उन अद्वियात की कीमतों के हवाले से रिपोर्ट क्या आई है। ये झूठे हैं, ये सारी चोरी में खुद मुलव्वस होते हैं। जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक बंदे का नाम दे देते हैं और पीछे से सारे बैठकर मिल बांट के खा रहे होते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये खा रहे हैं, इनको लोगों की रोज़ बद्दुआएं लग रही हैं। आप अगर आज सड़क पर चले जाएं तो आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं इस हुकूमत से खुश हूँ, खा वो इनको वोट देने वाला ही शख्स क्यों ना हो। अच्छा मैडम, अफगानिस्तान में जो सूरत बनने जा रही है कि लाखों लोग जो है वो इधर आने के लिए तैयार हैं, मीडिया में ये खबरें आ रही है कि हज़ारों लोग जो है वो तो आ भी गए हैं, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि लोग आ नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस शख्स का आपने नाम लिया है, ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो आज पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। ये तो ख़ुद इमरान न्याजी कहता था कि मैं इस बंदे को चपड़ासी ना रखूं, और उस चपड़ासी को उसने हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। तो पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये शख्स पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे में जिसे पहचाना जाना चाहिए, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न के मुताबिक बना था, आज बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग हमारे मुल्क के होम अफेयर्स को चला रहे हैं। मतलब ये कोई, मैं समझती हूँ कि किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे जो टेलीविज़न देखता होगा, जो ख़बरों को या ट्विटर को देखता होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, वो भी आपको कहेगा कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान कौन जा रहा होगा। तो इनसे बड़ा भोंडा मजाक कोई नहीं कर सकता, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मस्खरे हैं, ये जोकर्स हैं, हम इन जोकर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दिन ब दिन हमारी तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है कि ऐसे लोग पाकिस्तान के इतने अहम ओहदों पर फाइज हैं। हमारे मुल्क की तजलील मुल्क के अंदर भी हो रही है और मुल्क के बाहर भी हो रही है। ये बता दीजिएगा आदि, आप जी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अदालत में नजरसानी का एक बाकायदा तरीक़ेकार मौजूद है, तो सुई गैस से निकाले हुए मुलाजमिन के मामले पर पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी? क्योंकि अदालत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नजरसानी नहीं करेगी।
नहीं, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं। हमारी लॉयर्स की जो टीम है वो इस पर नज़रसानी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब जो हैं वो इस पर पहले भी इजहार कर चुके हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि ये टेक्निकल इशू है, और ये बिल्कुल टेक्निकल इशू है। एक अदालती फ़ैसला आया है, और अदालती फ़ैसले के हवाले से हम अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं, और इस पर जो दूसरा स्टेप है वो अदालत में जाना है। जो 8 मुलाजमीन इन्होंने 10 जून को निकाले थे 2021 को, जिनका जवाज़ ये था कि एमडी साहब वापस आते हैं और कहते हैं बोझ है ये। अच्छा, इनके उस हवाले से भी मैं आपके तवज्जुद से ज़रूर पूछूंगी कि जो 8 पहले निकाले थे वो कोर्ट ऑर्डर पे नहीं निकाले थे। स्वी सदर्न गैस से जो 8 लोग निकाले थे, मुझे और आपको ये बताया जाए कि उन 8 लोगों को क्यों नौकरियों से पीटीआई हुकूमत ने बर्खास्त किया। जो दूसरा फ़ैसला आपने कोर्ट की जिक्र किया है, जिस फ़ैसले का, उस पर हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, और जल्द इसके ऊपर कानूनी तरीका निकाला जाएगा। अपील का ही तरीका बनता है। हम चाहते हैं कि मीडिया में भी ये बात हाईलाइट करें, और अदालतें जो हैं वो मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव होती हैं, फ़ैसले भी उनके चलते हैं। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि जज अपने फ़ैसलों से ज़्यादा सुने जाते हैं, अपने टिकट से नहीं। लेकिन अगर आप लोगों की कवरेज से और आप लोगों की इस इंफॉर्मेशन से भी उनके कानों तक ये बात पहुंचती है, तो मेरा ख्याल है उन लोगों की मदद होगी जो आज मायूस हैं, जिन्हें आज नहीं पता कि हम 50-55 साल की उम्र में कहाँ जाएं। तो उनका कोई अब सहारा नहीं है अलावा इसके कि हम उनकी आवाज़ बने। अच्छा, ये बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने भी इसी ऑर्डिनेंस के तहत जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए थे एम्प्लॉइज, उनको रिस्टोर किया था। तो यहाँ के एम्प्लॉइज जो है मुख्तलिफ इदारों में, जो पुलिस और दीगर इदारों में, क्या वो आप श्योरिटी देते हैं कि आप उनको नहीं निकालेंगे उसी कानून के तहत, जिस कानून के तहत वफाक ने निकाले? देखें भाई, ये कि जहाँ पर भी लोग रखे गए, अदालती फ़ैसला अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की भी एक हमदर्दी और इंसानियत होती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आएगी, पीपल्स पार्टी की जहाँ हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद अदालत जाएगी। और मैं इस बात पर मुझे ना सिर्फ मुझे पता है बल्कि मुझे यकीन है, क्योंकि यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का मंशूर आइडियोलॉजी है। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं काम कर सकते। लेकिन जिस तरीके से वफाकी हुकूमत बैठ गई है, और बैठ नहीं गई है, नोटिस निकाल रही है लोगों को बरतरफ करने के, इससे उनकी जहनीत का आपको अंदाज़ा हो सकता है। और जो ये डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी इन्होंने बनाई है, इसमें भी जो हमारे इल्म में बात आई है और मीडिया में भी आई है कि इन्होंने जो भर्तियां की हैं वो मेरिट पे नहीं की हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो निकाल रहे हो, और जो लोग आपके साथ आपकी जी हुजूरी कर रहे हैं उनको आप फिट कर रहे हो ऐसी अथॉरिटी में जो कंट्रोवर्शियल है, और उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा। तो जो लोग इज़्ज़त से अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको निकालने में आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? 1 करोड़ नौकरियां ये हुकूमत कहती थी, और ये तो हमें ये भी कहा जाता था कि बाहर मुल्क से भी लोग यहाँ नौकरियों के लिए आएंगे, अमेरिका से लोग आएंगे। अभी किसी ने कहा जी कश्ती में लोग आ रहे थे अमेरिका से, वो थक गए आते आते यहाँ। तो ये नालायक लोग हैं, ये लोग नालायक हैं। ये हमें ताने देते हैं लोगों को नौकरियाँ देने के। हाँ, हमें फ़ख्र है हमने लोगों को नौकरियाँ दी। ये हमें ताने देते हैं कि आप सूबे की बात करते हैं, हमें फ़ख्र है हम सूबे की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगी। ये इनका वहम और इनका गुमान है कि वफाक को मजबूत करके ये सूबे मजबूत करेंगे। वफाक होती ही सूबों से मजबूत है। इन्होंने सबक ही गलत पढ़ा है। सारी उम्र इमरान खान जो है वो क्रिकेट खेलता रहा और दुनिया में अयाशी करता रहा। उसको पाकिस्तान का भी नहीं पता, उसको पाकिस्तान के आइन का भी नहीं पता, उसको फेडरेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। तो अगर आप लोगों को दीवार से लगाएंगे सूबों के अंदर, लोग बाहर आएंगे और आपको अपनी इन कुर्सियों से फेंकेंगे, पटखेंगे। बहुत शुक्रिया आप जी। जिक्र कर रही हैं मुस्लिम लीग का, आपको चौधरी बिरादरान मुन्नी सलाई कहते हैं कि सिंध में जो पानी की किल्लत है, पानी की चोरी की वजह से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उसको बेहतर करे। देखिए, वो इत्तेहादी हैं पीटीआई के, तो जब तक वो उनकी सोबत में रहेंगे वो ऐसी ही बातें करेंगे। जब वो बेहतर सोबत में आएंगे तो शायद उनको समझ आएगा कि ये इशू जेन्युइन इशू है, ये सिंध के लोग बना नहीं रहे हैं,
सिंध के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है। सिंध के लोग अपने हक़ाइक़ पर बात करते हैं। सिंध का जो शहरी है वो बाशऊर शहरी है। सिंध का शहरी इतना बाशऊर है कि पाकिस्तान के क़याम की पहली जो करारदाद मंजूर की गई वो सिंध असेंबली में मंजूर की गई। तो सिंध के लोगों के शऊर को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। और जो बेवकूफ़ लोग ये बोलते हैं कि सिंध के लोग जाहिल हैं, उनसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है इस दुनिया में। मैडम ये बताएं कि आपको एक गिफ्ट दिया है इमरान खान ने अरबाब गुलाम रहीम से। देखिए वो अरबाब गुलाम रहीम को तो पहले ही उसके गांव से ही लोगों ने जो है वो हम कहते हैं ना तड़ी पार कर दिया था। तो अब जिस बंदे की रुसवाई उसके अपने लोगों की तरफ से हो उसको मैं और आप क्या सज़ा देंगे। ये तो अल्लाह ने एक को दिया है। जिस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए वो उस गरूर में बात करता था जब वो चीफ़ मिनिस्टर था, उस पर अल्लाह की लाठी तो चलनी थी। अब अल्लाह की लाठी के बाद इमरान खान उसको जितनी भी छतरियाँ दे, लेकिन सिंध के अवाम ने उसको ठुकरा दिया है। उसके अपने गांव के लोगों ने उसे ठुकरा दिया है। उसके अपने इलाके के लोगों ने उसे ठुकरा दिया। और ठुकराया उसके अपने अमाल की वजह से, उसकी अपनी हरकत की वजह से, उसके अपने मिजाज की वजह से। जिस शख्स को इतनी रुसवाई हुई हो, मेरा तो ख्याल है उसको घर बैठ के सिर्फ तस्बीह पढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है 7 ठीक है, 7 इज़ गुड। तव्हां हूंदा हुते? ओके गुड। मूंखे थोरो मोकिले छॾिजो मटीरियल छा करिणो आहे।